Hi, all of you. Let's start with the chapter third, NCERT, Nationalism in India, part two. This is going to be. We're going to study in this one about the Rowlatt Act that was hurriedly passed by the Britishers on 6th of uh, April and so on. The reason was why this was so. We'll discuss in this particular part. Do like my channel, share the video, subscribe my channel, and press the bell icon that is on the right side of the below the video. The topic that we are going to cover in this video is the Rowlatt Act, the Jallianwala Massacre, and the Khilafat movement that happened. All these things happened in 1919, 1920, and 1921. By the 1922, the Khilafat movement and non-cooperation movement was withdrawn by Mahatma Gandhi because of the violent method that was used, started to be used by all the people, those who were there and those who were protesting against it, as this was against the theory and thinking of Mahatma Gandhi. The first topic in this video we are going to have it is the Rowlatt Act. When the Rowlatt Act 1919 was passed hurriedly through the Imperial Legislative Council in spite of unanimous opposition of the Indian members, Gandhiji's patience comes to an end. Now, before Gandhiji, in the Indian National Congress, moderates were there and extremists were there. दोनों के दोनों ग्रुप वहाँ पर थे, जिसको वो नरम दल और गरम दल के रूप में बात करते थे। नरम दल वो था जो कि ब्रिटिशर्स को पिटिशंस और इन सब चीज़ों को दे करके वह विश्वास करता था कि ब्रिटिशर्स उनकी बातों को मानेंगे, जबकि गर्म दल वह था जिसका कहना था कि नहीं, वो हड़ताल और अपोजिशन, विरोध, प्रदर्शन, इन सब चीज़ों का यूज़ करेंगे तभी जो है ब्रिटिशर्स उनकी बात को सुनेंगे। अल्टीमेटली गांधी जी पहले तो नर्म दल की ओर के साथ थे, उनका भी मानना था कि नहीं, ब्रिटिशर्स पे से पिटिशंस और रिक्वेस्ट इन सब चीज़ों को मानेंगे। लेकिन बहुत जल्द जब रॉलेट एक्ट पास हुआ, जो कि एक प्रकार से इंडियंस की बातों को, उनके हड़ताल करने के अधिकार, इन सबों को बंद करने की कोशिश ब्रिटिशर्स के द्वारा की गई, तो गांधी जी को समझ में आ गया कि ब्रिटिशर्स ऐसे बात नहीं सुनेंगे, और उन्होंने गर्म दल का जो मेथडोलॉजी था हड़ताल करने का, प्रोटेस्ट करने का, नॉट एग्रेसिवली बट in a method non-violently, but the aggression must be there in hartal and protest. That was there. Gandhiji wanted a non-violent civil disobedience against such an unjust law, which would start with a hartal on 6th of April 1919. 6th April 1919 was observed as Satyagraha Day, when people all over the country observed fast and hartal. 1919, the country witnessed a remarkable political awakening in India. Local leaders were picked up from Amritsar and Mahatma Gandhi was barred from entering Delhi. On 13th of April, there is a print mistake. On 13th of April, the police in Amritsar fired upon a peaceful procession, provoking widespread attacks on banks. Now, all these things happened in Amritsar and all of that, in many regions, like in Guntur, in Andhra. The people and the tribals, they just picketed the liquor shop. They tried their best to destroy all these liquor shops and the whatsoever the shops that were selling the foreign made goods. All these things were done सिर्फ इसलिए ताकि हमारा जो विरोध प्रदर्शन है वो एग्रेसिव हो, और इन सब चीज़ों का, जो कि महात्मा गांधी को काफ़ी हद तक पसंद था, लेकिन इस चीज़ के लिए नहीं पसंद था कि लोग वॉयलेंट मीन्स एंड मेथड का यूटिलाइजेशन करें। 1919 में जब ब्रिटिशर्स ने रॉलेट एक्ट को पास किया, तो उन्होंने कहा कि हम हड़ताल करेंगे, हम फॉरेन गुड्स को बर्न करेंगे, हम लिकर शॉप्स को खुलने नहीं देंगे। ये सारी चीज़ें उन्होंने कही। 6 अप्रैल को इन्होंने कहा कि हम हड़ताल करेंगे, और ऑन 13th of April in 1919 देयर वाज बैसाखी ऑन दैट पर्टिकुलर डे। और 6 अप्रैल के बाद ही, आफ्टर पासिंग ऑफ रॉलेट एक्ट, पंजाब, पूरे पंजाब प्रांत में, यहाँ पंजाब प्रांत का मतलब हमारा जो इंडिया का पंजाब है, नॉट ओनली दैट इज द पाकिस्तान पंजाब ऑल्सो, दैट इज इंक्लूडेड देयर, और हरियाणा, ये सारा का सारा हिस्सा आता था उस समय के पंजाब में। और पूरे पंजाब में मार्शल लॉ लगा दिया गया था। मार्शल लॉ इज़ अ टाइप ऑफ military rule in the country. At that particular time period, it was imposed in Punjab, and Punjabis, they were totally, they were unaware of, क्योंकि आज के मॉडर्न युग की तरह सोशल मीडिया इतना उस समय नहीं था।
अखबार भी बड़ी मुश्किल से गांव में पहुंचते थे। एंड बिकॉज ऑफ दैट द पीपल they were totally not known about this martial law. They get on Baisakhi on that particular 13th April, that dreadful day, that black day. The people get there at Jallianwala. They just सैल्यूट, नॉट द सैल्यूट बट मत्था अपना जिसको कहते हैं, वो उन्होंने मत्था टेका गुरुद्वारा साहब में। वहाँ से वो बाहर आए। बाहर पास में ही एक बगीचा था जिसको जलियांवाला बाग के नाम से हम जानते हैं। वहाँ लोग बैठे हुए थे और एक छोटे से इलाके में जो है कांग्रेस का एक प्रोसेशन, एक मीटिंग चल रही थी। जनरल डायर हु जस्ट गॉट दैट नॉलेज न्यूज़, ही जस्ट एंटर्ड। और आज भी जो है उस एरिया में एक बड़ा सा घर का इलाका को तोड़कर और उसके अंदर जो है पूरा एक मॉन्यूमेंट सा बना दिया गया है। लेकिन तब भी हम आज भी देखेंगे तो एक 3 फुट का रास्ता है जिसके रास्ते से जनरल डायर जो है अपने सिपाहियों के साथ घुसा था। उससे पूछा भी गया था एट द टाइम कि अगर टैंक ले जाने का या तोप ले जाने का मौका मिलता तो क्या आप ले जाते? उसने कहा हाँ, हम ले जाते। हम लोगों को वहाँ यह सबक सिखाना चाहते थे कि दोबारा उनको ब्रिटिश शासन से लड़ने की जरूरत नहीं है, वरना इससे भी बुरी तरह से उन्हें मारा जाएगा। जनरल डायर, he entered in that Jallianwala Bagh, blocked the exit point and opened fire on the crowd, killing 100 without even any provocation. The government responded with brutal repression, seeking to humiliate and terrorize people. Satyagrahis were forced to rub their nose on the ground, crawl on the streets, and do salam, that is salute, to all sahibs. सत्याग्रही जितने थे उनको बहुत बेइज्जत की लिमिट के बाहर ले जाया गया। लोगों से नाक रगड़ने को कहा जाता है, ज़मीन पर नाक रगड़ो, बेइज्जती की पूरी की जाते थे, सिर्फ इसलिए ताकि उनको ह्यूमिलिएट किया जा सके, ताकि उनके सत्याग्रह को जो है तोड़ा जा सके। इसलिए यह सब कुछ किया जा रहा था। ड्यूरिंग द सेम टाइम पीरियड महात्मा गांधी ने यह भी देखा, मोहम्मद अली जिन्ना और मौलाना आज़ाद, अजमल खान, हसरत मोहानी, इन लोगों ने भी देखा कि हम अगर हिंदूज के साथ मिल जाएं तो हमारा जो उनका खिलाफत एक आंदोलन चल रहा था, जो हम आगे पढ़ेंगे अभी क्या था, तो एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो जाएगा और ब्रिटिश के खिलाफ हम लड़ सकेंगे। हिंदी में एक बहुत पुरानी कहावत है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। यहाँ पर हिंदू और मुसलमान दोनों का दुश्मन एक था, वो था ब्रिटिश। और इसलिए मुस्लिम्स और हिंदूज, महात्मा गांधी, मौलाना आज़ाद, अजमल खान, ये सारे लोग मिल गए और उन्होंने एक नया फ्रंट पूरा तैयार किया, नॉन कोऑपरेशन एंड खिलाफत मूवमेंट, जो कि ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट पूरी इंडिया में चल रहा था, जबकि खिलाफत मूवमेंट पूरी दुनिया में चल रहा था। कारण भी था। Now here, Rowlatt Satyagraha had been widespread movement. It was still limited mostly to cities and towns. Mahatma Gandhi now felt the need to launch a more broad-based movement in India. But he was certain that no such movement could be organized without bringing Hindus and Muslims close together. The First World War had ended with the defeat of Ottoman Turkey. There were rumors that a harsh peace treaty was going to be imposed on the Ottoman Empire, who was the spiritual head, Khalifa of the Islamic world. The Muslims of India decided to force Britain to change its Turkish policy. A Khalifa committee was formed under the leadership of Maulana Azad, Azmal Khan, and Hasrat Mohani. A young generation of Muslim leaders like Brother Muhammad Ali and Shaukat Ali began discussing with Mahatma Gandhi about the possibility of united mass action on this issue. And ultimately this happened also. कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1918 में ख़त्म होने के बाद वर्सिलियस की ट्रीटी में जो इस तरह के डिस्कशंस चल रहे थे, उसके अनुसार से था कि पूरे ऑटोमन टर्की को ख़त्म करके और सिर्फ टर्की एक अलग और बाकी देशों को अलग बनाया जाए, प्लस टर्की का जो एम्परर था, जो ऑटोमन एम्परर था, उसको हटा दिया जाए और उसकी जगह पर पपेट गवर्नमेंट, जिसको कहते हैं कठपुतली की सरकार, उसको बनाई जाए ताकि जो चाहे ब्रिटिशर्स वैसा कर सकें। और इसी से जितने भी मुस्लिम्स ऑल ओवर द वर्ल्ड थे उनको बुरा लगने लगा, क्योंकि उनका जो स्पिरिचुअल हेड था उसके खिलाफ ये काम किया जा रहा था। और इससे ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो है पूरे के पूरे मुस्लिम वर्ल्ड इकट्ठे हो गए। और यहीं पर इंडियन मुस्लिम्स ने कोशिश की कि चलो हम ब्रिटिशर्स के खिलाफ शुरू करते हैं एक आंदोलन। नाउ ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर टाइम पीरियड, मौलाना आज़ाद, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के एक मेंबर थे, अजमल खान, हसरत मोहानी, इन लोगों ने शौकत अली और मोहम्मद अली के साथ मिलकर एक पूरा का पूरा खिलाफत आंदोलन शुरू कर दिया। और इसके साथ ही महात्मा गांधी ने भी एक पॉसिबिलिटी देखी और उसके अंतर्गत उन लोगों ने मिल करके एक पूरा नॉन कोऑपरेशन और खिलाफत मूवमेंट शुरू कर दिया, विच वॉज अ रीज़न कि हमारा नॉन कोऑपरेशन और खिलाफत मूवमेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग था टिल 1922, जस्ट आफ्टर एन इंसिडेंट at near Gorakhpur,
because of burning of one police station and some more violent acts of satyagrahi that Mahatma Gandhi called off the non-cooperation movement. इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के कॉल ऑफ करने के कारण बहुत सारे कांग्रेसीज जो हैं उनके विरोध में भी चले गए, बुरा भी लगा उनको. बट देन ऑल्सो it's not the part of your syllabus, but it's a part of history that we will come to know about. Thank you, all of you. We will meet in next class in the part 3rd of Nationalism in India. Thank you. Have a nice day. Bye.